हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम बात कर रहे थे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। उसकी हमने इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी और पॉलिटी कैसी थी वो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में बात करेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी किस तरह की होती थी। इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन इंग्लिश. So, as the time passed by, the yajnas became elaborate and complicated ceremonies leading to emergence of learned men known as brahmanas. And as Aryan expanded to east and south of India, various people, the group of people known as Kshatriya emerged to conquer territories and administer them, and the remaining Aryans formed a separate class known as Vaishya, which is the word derived from the word vis, which means people, and lastly the non-Aryans formed the fourth class, which is Shudras. So we have discussed four classes. First of all, the Brahmanas, who were the learned men who performed the yajnas. Next, the people who used to conquer the territories. These are Kshatriyas, the ones who were a separate class, who are the people which is from the word vis, the name of them derived, which is known as Vaishyas, and lastly the ones which are known Aryans, and these were known as Shudras. Nevertheless, this division of society was not very rigid. The institution of Gotra, that is the clan, appeared in later Vedic period. The higher caste could marry with the lower ones, but the marriage with Shudra was not permitted. The idea of pollution appeared in the society. The earliest reference of the four ashrams, the stages of life, which are Brahmacharya, Grihastha, Vanprastha, and Sannyas, is found in the Jabal Upanishad. The ashram system was formed to attain four purusharth, that are Dharam, Arth, Kam, and Moksha. The status of women declined. The status of women was very much good in the Vedic period, Rig Vedic period, but it declined in the later Vedic period. According to Aitreya, Brahman, a daughter is the source of misery, but a son is the protector of family. So this is how they used to consider the women of that time. According to Maitreya Samhita, there were three evils. These are liquor, women, and dyes. So this is how bad the condition of women was that time. Though monogamy, that is a man having one wife, was the ideal thing, but polygamy, that is a man having more than one wives, was very frequent at that time. Women were prohibited to attend the political assembly. Yajnavalkya, that is the Gargi dialogue, it indicates that some women had got higher education as well. So although the condition of women was very bad, was deteriorated from Rig Vedic to later Vedic period, but the Yajnavalkya shows that some women were the ones who got higher education also. There were many kinds of human marriages, which we have already discussed in in a very short video, and there were 16 sanskars, which are Garbhadhar, Pumsavan, and many others. And the kind of Hindu marriages were Brahm Vivah, Davya Vivah, Arsh Vivah, Prajpatya Vivah, Gandharva Vivah, Asur Vivah, Rakshas Vivah, and Pishach Vivah, which we have already discussed in previous video. 16 sanskars were like Garbhadharan, Pumsavana, Simantunya, Jatakarma, Namkaran, Nishkraman, Anprashanna, Chudakarma, कर्णछेदना, विद्यारंभ, उपनयन, विदरंभ, समयवर्तना, विवाह, वानप्रस्थ, and अंत्येष्टि. So these were the 16 sanskars of that society. So this is it about the society of later Vedic period. अब इन्हीं बातों को हम हिंदी में डिस्कस करते हैं. So जैसे जैसे टाइम पास होता गया, जो यज्ञ थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए. ठीक है. सो इन्हें परफॉर्म करने के लिए ऐसे लोग आ गए जो मतलब काफ़ी पढ़े लिखे थे, जो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा शिक्षित थे, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाने लगा. उसके बाद जैसे जैसे इनकी एक्सपेंशन हुई ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में और साउथ में, तो इन्हें वेरियस टेरिटरीज़ को जीतने की ज़रूरत पड़ी. और जो लोग टेरिटरीज़ को जीतते थे उन्हें क्या कहते थे,
कि वो क्षत्रिय क्लैन के हैं, और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़ के जो भी आर्यंस बच जाते थे उन्हें कहा जाता था कि वो वैश्य क्लैन के हैं। और वैश्य शब्द डिराइव किया गया है विस शब्द से, जिसका मतलब होता है पीपल, दैट इज़ लोग, ठीक है। और जो भी ऐसे लोग हैं जो आर्यन नहीं थे उन्हें शूद्र कहा जाने लगा, ठीक है। जो सोसाइटी की जो डिवीज़न थी, ये सारी डिवीज़न हमने देखी, ये ज़्यादा रिजिड नहीं थी, तो मूवेबल थी, मूव कर सकते थे फ्रॉम वन क्लैन टू अनदर। ऑल्सो जो गोत्र का इंस्टीट्यूशन था, मतलब जो क्लैन का इंस्टीट्यूशन था, मतलब कैसे क्लैंस, डिवीज़न ऑफ क्लैंस जो थी वो इस पीरियड में आ गया था, ठीक है। जो हायर क्लास के लोग थे वो मैरी कर सकते थे लोअर क्लास के लोगों से, ठीक है। बट जो शूद्र होते थे उनके साथ विवाह परमिटेड नहीं थे, मतलब उनके साथ शादी नहीं कर सकती। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपस में एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते थे, ठीक है। पोल्यूशन का आइडिया इस सोसाइटी में आ गया था। चार आश्रम होती हैं, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनके बारे में भी जबल उपनिषद में वर्णित किया गया है कि लेटर वैदिक सोसाइटी में इनका वर्णन है। जो आश्रम जो थे वो, ये जो आश्रम थे वो किस चीज़ के लिए थे कि इनके थ्रू 4 पुरुषार्थों को अटेन किया जाता था। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। इस सोसाइटी में जो विमेन का स्टेटस था बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था, कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। ऋग्वेदिक पीरियड में आपने देखा कि विमेन की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर लेटर वैदिक पीरियड में डिक्लाइन होने लगी। ऐत्रेय ब्राह्मण के अकॉर्डिंग जो एक डॉटर होती थी उस समय वो मिजरी का कारण होती थी, मतलब किसी की बदकिस्मती का कारण होती थी, जबकि जो बेटा होता था वो परिवार का रक्षक होता था, ठीक है। और इसी तरह मैत्रेयानी संहिता में कहा गया है कि 3 तरह की ईविल होते हैं सोसाइटी में। कौन कौन से? एक लिक्विड मतलब शराब होगी, डाइस मतलब जुआ हो गया, और तीसरा किसे कहा गया है? विमेन को कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो विमेन होती थी उन्हें कोई भी पॉलिटिकल असेंबलीज में अटेंड करने का कोई भी रोका जाता तो उससे वो अटेंड नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मोनोगामी, मतलब वैसे तो आइडियल मोनोगामी होती थी, मतलब एक पुरुष एक महिला से विवाह करेगा, पर उस सोसाइटी में पॉलीगामी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी, मतलब एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह कर सकता था, ठीक है। जो गार्गी का एक डायलॉग है यज्ञवल्क्य, उसमें कहा गया है कि कुछ ऐसी विमेन थी उस सोसाइटी में, चाहे मतलब इस सोसाइटी की कंडीशन इतनी बुरी थी फिर भी उस सोसाइटी में कुछ ऐसी विमेन थी जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा कई तरह की हिंदू मैरिजेस की विवाह की बात की गई है, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इनके बारे में हमने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा 16 संस्कार थे इनकी सोसाइटी में। कौन कौन से? जैसे जो संस्कार क्या होते हैं वो शो करते हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ को, ठीक है। तो कौन कौन से संस्कार थे? जैसे गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्य, जातकर्मा, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रसन्न, चौदकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, समयवरंत, विवाह, वानप्रस्थ एंड अंत्येष्टि। ये सारे संस्कार थे, ये 16 संस्कार थे उस समय की सोसाइटी की। इनके कुछ के तो नाम से आपको समझ आ रहा होगा, जैसे गर्भधारण मतलब जब कोई स्त्री गर्भ को धारण करती है। उसी तरह जैसे नामकरण, तो मतलब किसी बच्चे का नामकरण होता है तो उसका संस्कार, ठीक है, उस डायलॉग को कहते हैं, ठीक है, नामकरण संस्कार। उसी तरह एक संस्कार है जैसे विवाह, जो शादी के लिए यूज़ किया जाता है शब्द। उसी तरह विद्यारंभ मतलब जब किसी बच्चे की विद्या आरंभ होती है, शुरू होती है, ठीक है। कर्ण छेदना मतलब जब उसके कान छेदे जाते हैं, मतलब उसमें कान छेदे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई संस्कार हैं एक इंसान के जीवन के जिन्हें इस समय की सोसाइटी में माना जाता था। तो ये थी बात लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में। थैंक यू सो मच।